Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Class 12th Mathematics. Dear students, in today's topic, it is exercise 4.2 determinants chapter number 4. As lastly we have done up to the questions of this exercise, question number 7, we have already solved in yesterday's video. Now in today's video we will try to solve question number 8 of this exercise 4.2. These are very important questions frequently asked in the examination. It is a long type. It is when it is asked as a long answer type question. 6 marks question पूछा जाता है एग्जाम में. इसके पूरे 6 मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन के. और definitely one question is asked in this exercise. So it is of very important. It is a very important exercise. So you should keenly try to understand these questions. We have to prove that this determinant is first row 1a square, second row 1b square, third row 1c square. It should be equal to a minus b into b minus c into c minus a. तो हमें क्या मालूम करना है, ये डिटर्मिनेंट है जो इसका कीमत ये होना चाहिए. LHS में ये है और RHS में ये है. हमें ये देखना है कि ये इसके बराबर है a minus b into b minus c into c minus a. Let us try to solve this. We will take this LHS. इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये साइड ये हम लेंगे और इसको ये इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे. तो ये डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड में. वी विल रिपीट दिस 1a स्क्वायर, सेकंड रो 1b स्क्वायर, थर्ड रो 1c स्क्वायर. तो ये अक्सर जो ये डिटर्मिनेंट इस एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स से, ये सारे 3/3 ऑर्डर के हैं, ऑफ ऑर्डर 3. तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लाएंगे और उसी जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे तो उसी रो के along that row we expand the determinant and we will get the value, required value. So we will apply here. Applying here the operation, यहाँ आप अप्लाई कीजिए. एक अप्लाइंग क्या करेंगे हम, अगर हम करेंगे 1 minus 1 तो 0 आएगा यहाँ पर, 1 minus 1 तो 0 आएगा यहाँ पर. तो we should here we should subtract row 2 row 1 पर हमें ऑपरेशन करना, row 1 minus row 2 और row 2 minus row 3. We should apply here row 1 upon row 1 minus row 2, and simultaneously we can use two operations. Here we operate a row 1 and in second operation we should not operate this row 1, we should operate the other two rows. That is, we should operate row 2 minus row 3. तो देखते हैं क्या होगा. Its LHS is equal to determinant. It is 1 minus 1 0, a minus b, it is a minus b, a square minus b square, a square minus b square. फर्स्ट रो ये पहला ऑपरेशन जो था वो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2. R1 पर हमने ऑपरेट किया तो R1 माइनस R2. अब R2 को ऐसे ही रहना था लेकिन हमने सेकंड ऑपरेशन यहाँ पर लगाया. ये फर्स्ट ऑपरेशन था, हमने सेकंड भी इसी में लगाया. तो R2 पर हम ऑपरेशन करें R2 माइनस R3. 1 minus 1 0, b minus c, it is b minus c, it is b square minus c square, b square minus c square, right? Third row is as it is 1c square. Now here again we will try to take something out.
because we need here a minus b, b minus c, c minus a. So what will we take out from first row? Taking out a minus b यहाँ, या इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं. It is 0. It is a minus b. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, ये एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. You have already learned it in class 9th. It is a minus b into a plus b. A square minus b square is a minus b into a plus b. तो इसके बदले हम यही लिखेंगे यहाँ पर a minus b into a plus b. तो ऐसे हम इसको और चेंज करेंगे एक और स्टेप में. यहाँ पर इसी तरह से 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू b माइनस सी इंटू बी प्लस सी. ये आल्सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी. तो 1 यहाँ पर c और यहाँ पर c स्क्वायर. इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे काम, इसमें से a माइनस बी को हम बाहर निकालेंगे. a माइनस बी फर्स्ट रो से बाहर लेते हैं. यहाँ 0 इंटू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं. यहाँ हम ऐसे भी लिखते हैं 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. 0 इंटू ए माइनस बी इज अगेन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a माइनस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी. इसको हम बाहर लेते हैं. सेकंड रो में यहाँ पर हम 0 इंटू बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो 0 यहाँ सेकंड रो में b माइनस सी कॉमन है, तो इसको हम आउट लेते हैं. सो टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम रो 1, टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम रो 1, b माइनस सी फ्रॉम रो 2, एंड हियर वी आर लेफ्ट विथ. यहाँ पर आप इसको अब रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप समझ गए होंगे. 0 इंटू ए माइनस बी हम कर सकते हैं, 0 इंटू सी माइनस बी माइनस सी भी कर सकते हैं, वो 0 के ही बराबर होगा. तो यहाँ पर रह गया 0 फर्स्ट रो में. a माइनस बी को हमने बाहर लिया तो यहाँ रहा 1. a माइनस बी हमने बाहर लिया तो यहाँ रहा a प्लस बी. और सेकंड रो में हमने यहाँ 0 रह गया और यहाँ b माइनस सी हमने आउट लिया, इसको कॉमन लिया तो यहाँ रहा 1. b माइनस सी यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ रहा b प्लस सी, यहाँ बचा b प्लस सी. तो यहाँ थर्ड रो एज इट इज 1 c स्क्वायर. राइट, नाउ इट इज अगेन इक्वल टू. अब हमें आसान हो गया. यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट जो है इसमें कितने ये जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं और एक यहाँ पर है. तो वी विल ऑपरेट इट अलोंग कॉलम नंबर 1. सो हम यहाँ पर करेंगे ऑपरेटिंग अलोंग कॉलम 1. So we will get here a minus b into b minus c. ये तो बाहर ऑलरेडी है. तो जब हम यहाँ C1 थ्रो कॉलम, तो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पर, और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला रो कैंसिल डिलीट और ये वाला डिलीट. तो यहाँ क्या बचता है 1 इंटू, ये डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं इनके साथ पॉजिटिव साइन हमेशा आता है. और ये है A31. अगर इसको -1 पावर 3 प्लस 1 तब भी ये -1 पावर 4 आता है. -1 पावर 4 इज इक्वल टू +1. तो डायगोनल के एलिमेंट जो उनके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आती है. तो हमें यहाँ बचता है 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, 1 इंटू डिटर्मिनेंट दिस 1 a प्लस बी, और यहाँ पर 1 b प्लस सी. तो देखते हैं किसके बराबर आएगा ये, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी. ये तो आप समझ गए होंगे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट 1 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको और इसको.
1 इंटू बी प्लस सी, दैट इज 1 इंटू बी, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 ऑलरेडी है, इस ये 1 जो बाहर था हमें 1 इंटू, तो 1 अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। तो हमें क्या आएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर, यहाँ ये सॉरी 1 इंटू माइनस है, ये माइनस 1 इंटू ए प्लस बी दैट इज इट विल बिकम माइनस ए एंड माइनस बी। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, ए माइनस बी जो बाहर ऑलरेडी था इंटू बी माइनस सी, तो अंदर यहाँ क्या रहता है, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी बचता है सी माइनस ए, अंदर रह गया सी माइनस ए, सो विच इज इक्वल टू दिस आर एच एस। यहाँ पर चेक कीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो इस तरह से विच इज इक्वल टू आर एच एस, और ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये पार्ट, इसका ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है, बहुत आसान था ये। So next we will see next part of this question. Next part. क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सेकंड पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कोई भी क्वेश्चन इसमें मत छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इससे। 1 सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो ए बी और सी, थर्ड रो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। You should learn these by heart. A minus B, B minus C, C minus A into A plus B plus C. तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको साबित, आपका ये डिटर्मिनेंट दिया है टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक है पार्ट नंबर 2, 1 1 चेक कीजिए, 1 1 1 ए बी सी सेकंड रो, थर्ड रो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसको आपने प्रूव करना है, ए माइनस बी आर एच एस में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम करेंगे, लेट अस टेक दिस LHS, LHS को हम लेते हैं, it is the determinant 1 first row 1 1 और second row a b c, third row a cube b cube c cube। dear students, it's a very important question। तो क्या करेंगे हम, वही बात जो मैंने आपको बताई कि हमें किसी we should make any row, we should make maximum number of zeros in any row or in any column। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे काम यहाँ पर 1 माइनस 1 तो 0 आएगा ना, 1 माइनस 1 0 आएगा, और ये 1 माइनस 1 0 आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग, हम करेंगे यहाँ ऑपरेटिंग या अप्लाइंग, ऑपरेटिंग एज, कैसे करेंगे ऑपरेट, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एक ऑपरेशन करेंगे कॉलम 1 पर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, सेकंड ऑपरेशन इसी में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, दो ऑपरेशन 1 एक ही साथ करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 पर लगाएंगे ऑपरेशन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो दो कमांड्स हमने एक ही बार दी है इस क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर एक बात आप याद रखें, जब हमने यहाँ पर कॉलम 1 पर पहली कमांड जो दी तो दूसरा ऑपरेशन जो इसी में हम लगाएंगे एक ही साथ, तो वहाँ कॉलम 2 यहाँ नहीं आना चाहिए, कॉलम 1 यहाँ नहीं आना चाहिए, कॉलम 1 इस ऑपरेशन में नहीं आना चाहिए। ये आप याद रखें। अगर कॉलम 1 आपने इसमें लाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर ये बिल्कुल गलत देगा। तो हम करेंगे काम, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 क्या आएगा, कॉलम 1 माइनस 1 इट इज 0, यस, a माइनस बी इट इज a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फर्स्ट कॉलम आ गया, फर्स्ट कॉलम पर हमने ऑपरेशन किया 1 माइनस दिस a माइनस b, a क्यूब माइनस दिस b क्यूब, ये आ गया कॉलम 1। कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड पर हमने ऑपरेट किया है कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 इट विल बिकम हियर 0, b माइनस c इट विल हियर बिकम b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब। उम्मीद है कि आप ये समझते होंगे क्या कर रहा है हमें यहाँ पर। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। कॉलम 1 विल रिमेन एज इट इज 1, इट इज c क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन किया। तो यहाँ पर हमें ये एक फार्मूला बन गई, यहाँ पर ये वाली फार्मूला। तो इसको हम आप जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला भी आपने 9वीं जमात में सीखी है। ये होती है बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ये, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 0 a माइनस बी। तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, इसमें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फर्स्ट कॉलम। और इसी तरह से सेकंड कॉलम 0 b माइनस सी, तो यहाँ पर b क्यूब माइनस सी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब, ये भी ऐसे ही बनेगी, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, राइट। तो थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेगा 1 c और यहाँ पर c क्यूब। दिस थोड़ा ये बड़ा डिटरमिनेंट बन जाता है लेकिन बहुत आसान भी है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 0 a माइनस बी, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू ए माइनस बी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 इंटू ए माइनस बी, या यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इंटू बी माइनस सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 इंटू ए माइनस बी अगेन इक्वल टू 0। तो यहाँ इसमें a माइनस बी कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं a माइनस बी, टेकिंग a माइनस बी आउट फ्रॉम कॉलम नंबर 1 एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम नंबर 2। यहाँ इस 0 के साथ भी है b माइनस सी, सेकंड एलिमेंट b माइनस सी, और यहाँ भी b माइनस सी भी कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है, अंदर देखो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट बचेगा। ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या, अब ये इसको मैं रब करूँगा, इसको मैं साफ करूँगा, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। a माइनस बी मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर 1 रहा, और a माइनस बी यहाँ पर मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। कॉलम फर्स्ट में मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, आउट लिया, तो यहाँ रहा 0 1, और यहाँ रहा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह से टेकिंग b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2 आउट करेंगे इसको, तो यहाँ रहेगा 0
यहाँ बी माइनस सी वापस लेते हैं, बाहर लेते हैं 1 और यहाँ बी माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, राइट, बी स्क्वायर प्लस दिस। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम 1 सी और सी क्यूब, ऐसे ही जैसे ये था। तो ये बच गया हमें यहाँ पर। अब हम ऑपरेट करेंगे थ्रू रो 1 करेंगे ऑपरेटिंग थ्रू रो 1। नाउ ऑपरेटिंग अलोंग रो 1, तो यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे इसको। यहाँ हमें बचता ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर देखो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसको डिलीट कीजिए, ये डिलीट हो जाता है। ये तरीका है जब हम अलोंग दिस रो ऑपरेट करेंगे तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है, डिटर्मिनेंट दिस 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, दिस 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस। तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट 1 इंटू दिस बी स्क्वायर, 1 इंटू, चलो ऐसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट जगह कम रहेगा हमें। डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पर 1 ऑफ ऑर्डर 2, ये रो और ये कॉलम खत्म। यहाँ बचा ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये डिटर्मिनेंट बचा। अब इसको ऑपरेट करेंगे, ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ 1 इंटू करेंगे तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो माइनस यहाँ इससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ ये क्या बनेगा, माइनस, यहाँ अगर माइनस करेंगे इसको -1 से ज़रूर करेंगे या इसको माइनस से करेंगे ज़रूर, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस, इट विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस होता है फार्मूला का, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो माइनस ए बी। वी विल गेट हियर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचता है हमें, यहाँ हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिखेंगे और प्लस दिस बी सी और माइनस ए बी, ये यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ पर ये इट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इट विल बी इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी प्लस बी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस, यहाँ इसमें से बी कॉमन लीजिए, कॉमन बी लीजिए बी, तो यहाँ क्या रहेगा, सी माइनस ए। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। तो हमें यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो इसमें से सी माइनस ए कॉमन लीजिए, सी माइनस ए को कॉमन लीजिए इसमें से, यहाँ पर सी माइनस ए और यहाँ पर सी माइनस ए कॉमन, तो अंदर क्या बचता है, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी बचता है, सी प्लस ए, यहाँ पर सी प्लस ए बचता है और यहाँ पर प्लस बी बचता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो यही हमें प्रूव करना था RHS में, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस
सी, तो ये हमें प्रूव हो गया, विच इज इक्वल टू और एच एस, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी सॉल्व हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, बस खुदा हाफिज।